Hello, my all learners. Welcome back to my channel. Today we have started a new topic that is the nanotechnology. So, in that chapter, we have to understand what is the nanotechnology and what will be the properties of that nanoparticles and how can be used for the further applications that we have to understand in this chapter. Along with this, we have to understand what will be the synthesized process for the nanomaterial. So in this chapter we have to change or we have to understand the changes at the scale of the 10 to the power minus 9 meter, which is basically are known as nano physics or the nano scale. So that's we have to understand first is what is the nanotechnology. So as the word indicated that the nanotechnology is a kind of technology as a science or a study in which we have to study the number of particles when we reach at the scale of 10 to the power minus 9 meter. That means this is known as a scale of the nano scale. So nano scale or nanotechnology is a science or a technology in which we have to study the particles at this scale and what will be the application, what will be the changes in that we have to understand into the nanotechnology. So I hope you have understand what is the nanotechnology. In another word, I have to explain with the help of this diagram also. There will be the two words. One is called as a bulk word, which is macro word, is known as also known as a macro word. Then our everyday life we have to see the bulk material which we use in different ways, and that is governed by the different law of the classical physics. So that's why the bulk material we can say that is classically is governed by the or monitored by the classical physics. After that, with bulk material we have to reach an another word that is known as a micro word, and that one is governed by the quantum physics, which I have already studied into the quantum physics. Now the quantum physics, after that, that quantum physics, that scale or that physics whenever is governed or it is reached to the nano scale, which is around 1 to 100 nanometer, then this is called as a nanophysics or the nano science or the nanotechnology. So what we have understand a scale of 1 to 100 nanometer, and that is properly dictated by the quantum mechanics. And whenever we are reaching this nano word, their property is drastically changed. So how the properties are changed in that we have to understand in this chapter, because the size and the shape has been changed, that is depend or that is very responsible for the changes in the properties of the nano material. Now we have to understand first, I think it is very clear to all of you ki what is the nanotechnology and how it is changed at the word when then it is reached to the nano scale, that is 1 to 100 nanometer. तो आई थिंक वी हैव अंडरस्टैंड दैट वर्ड, मतलब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से जो है मैंने आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन की, अब मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है एक साइंस है जिसमें हम नैनो स्केल पर जाकर जो है पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं और जो है उनको हम जो है बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की उनकी प्रॉपर्टीज जो है वहाँ पर जाकर चेंज हो जाती है, उस स्केल पर जाकर जो है चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो है हमने जो पहला वर्ड जो रियल वर्ड जो सीखा, दैट इज रियलिटी, दैट इज द वर्ड जो कि हम बेसिकली डे टू डे में जो है इन चीज़ों से जो है इन चीज़ों को हम फॉलो अप भी करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो लाइक कलर, स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी, ऑल द प्रेडिक्टेबल जो इनके फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, दैट ऑल विल बी गवर्न बाय द क्लासिकल फिजिक्स। नाउ आफ्टर दैट क्लासिकल फिजिक्स, क्योंकि हमने एक्सप्लेन किया कि ये बल्क मटेरियल को हम मैक्रो बॉडीज भी बोलते हैं और जिसको क्लासिकल फिजिक्स जो है गवर्न करती है। आफ्टर दैट व्हेन वी रीच टू दैट माइक्रो स्केल, दैट माइक्रो स्केल इज अराउंड द 10 टू द पावर माइनस 6.1। तो जब हम इस स्केल पर पहुंचते हैं तो दैट इज बेसिकली इज गवर्न बाय द क्वांटम फिजिक्स। नाउ क्वांटम फिजिक्स is also govern the nano physics, but we have to reach the scale at 1 to 100 nanometer. So we can say that ki the nano physics is dictated by the quantum mechanics, but at that stage we have to understand at the 10 to the power minus 6 scale the property will not be change of the
material. But when we reach that material at the scale of 1 to 100 nanometer, that means their properties is drastically changed, and that is done due to the shape and size of that nano scale. So हम समझेंगे कि किस तरीके से ये जो है शेप और साइज का कम होने की वजह से, यानी 100 नैनोमीटर की स्केल पे पहुंचने की वजह से क्यों ये प्रॉपर्टीज जो है चेंज होती है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. तो सबसे पहले नॉर्मली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है. ये एक साइंस है, एक इंजीनियरिंग है और एक टेक्नोलॉजी है जो कि इस स्केल के ऊपर यानी 1 to 100 नैनो स्केल के जो है उस पर कंडक्टेड की जाती है. और इसमें हम मैटर्स को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे. तो आई होप आपको नैनो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी जो होती है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम जो है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल को जो है नैनो स्केल पर लेकर जाते हैं. और हमने ये भी देखा कि नैनो स्केल पर जाने पर यानी साइज और शेप में चेंजेस होने की वजह से उसके प्रॉपर्टीज में ड्रास्टिकली चेंजेस आते हैं. तो व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? द फर्स्ट रीजन टू चेंजेस इन प्रॉपर्टीज, इट इज क्वांटम कन्फाइनमेंट. तो पहले हम समझेंगे कि हमारा क्वांटम कन्फाइनमेंट होता क्या है. तो मैं पहले एक वर्ड आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी एंड देन वी रीच टू द हिंदी वन. ठीक है. तो क्वांटम कन्फाइनमेंट मीन्स क्वांटम इज अ स्केल या क्वांटम इज अ माइक्रो बॉडीज, यानी हम माइक्रो स्केल के ऊपर बात कर रहे हैं. लेकिन जब उसी क्वांटम पार्टिकल को हम इन द स्केल ऑफ नैनो जो है स्केल पर लेके जाते हैं, यानी किसी भी एक डायमेंशन को, वी नो दैट कि देयर विल बी द 3 डायमेंशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मटेरियल. व्हेन वी रीच द एनी स्केल ऑफ द मटेरियल इनटू अ नैनो स्केल, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वांटम कन्फाइनमेंट. तो इसको हम बोलते हैं क्वांटम कन्फाइनमेंट. यानी किसी भी मटेरियल की एक डायमेंशन को हम अगर नैनो स्केल में ले जाकर ट्रैप कर दे, यानी इलेक्ट्रॉन को उस रेंज में ले जाकर ट्रैप कर दे, तो दैट इज नोन एज क्वांटम कन्फाइनमेंट. तो आई होप आपको क्वांटम कन्फाइनमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वांटम कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन क्या हुई कि जो हमारा मटेरियल है उसकी किसी भी एक डायमेंशन को अगर हम क्वांटम स्केल पर ये नैनो स्केल पर लेकर जाते हैं तो दैट इज डिफाइंड एज अ क्वांटम कन्फाइनमेंट. और जैसे ही हमारा कोई जो है इलेक्ट्रॉन नैनो स्केल पर जाता है, कोई एक भी डायमेंशन नैनो स्केल पर जाती है, तो दैट विल गिव अ ड्रास्टिक चेंज इन देयर द प्रॉपर्टी ऑफ द नैनो मटेरियल्स. So that we have to understand properly what is the quantum confinement. The quantum confinement is a kind of a process in which we have to reduce any one dimension into the nano scale. It may be a one dimension, it may be a two dimension, or it may be a three dimension. तो हम ये जो confinement है, ये जो quantum का confinement है या reach जो है हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक डायमेंशन को ट्रैप करने की नैनो स्केल में, ये वन डायमेंशन भी हो सकती है, टू डायमेंशन भी हो सकती है और थ्री डायमेंशन भी हो सकती है. वन डायमेंशन मतलब हमने उसकी एक डायमेंशन को नैनो स्केल पर लेके आए. इसी तरीके से अगर दो डायमेंशन को हम नैनो स्केल पर लेके आए, इसी तरीके से हम थ्री डायमेंशन को भी नैनो स्केल पर. तो जब हम तीनों डायमेंशंस की बात करते हैं तो हर एक डायमेंशन में क्वांटम कन्फाइनमेंट होने पर हमें अलग अलग तरीके के जो है स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं और ये बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं फॉर द क्वांटम फिजिक्स. तो पहले हम यहाँ समझेंगे एज अ मटेरियल डायमेंशन शिफ्ट टू द नैनो स्केल. जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांटम कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि मटेरियल की एक भी डायमेंशन, एनी वन, एक मिनिमम एक डायमेंशन को हमें क्या करना है, श्रिंक करना है एट नैनो स्केल. इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड इन अ कन्फाइंड स्पेस व्हिच इज द अलोंग इनटू द 10 to the power -9 नैनोमीटर. जब इस रेंज में जाता है तो दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन टू अलाउ देयर एनर्जी लेवल फॉर कंटिन्यूअस बैंड टू डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज स्टेप. तो इसका रीजन क्या हो जाता है, क्यों उनके चेंजेस आते हैं, क्योंकि इस रीजन में इस स्केल पे जाने पर जो उनकी अलाउड एनर्जी लेवल होते हैं, जो बैंड्स होते हैं, जो कंटिन्यूअस बैंड होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं और इसकी वजह से उनके जो है प्रॉपर्टीज में एक यूनिक चेंजेस आते हैं जिनको हम बोलते हैं यूनिक चेंजेस ऑफ द नैनो प्रॉपर्टीज. तो अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो है बल्क मटेरियल है. तो एज वी नो दैट कि इनकी एनर्जी लेवल जो है एक बैंड के फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर्ड बैंड के फॉर्म में जो है दिखाई देते हैं. लेकिन जब यही चीज यानी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि
कि किसी भी एक स्केल पर उसके डायमेंशन को जो है नैनो स्केल में लेकर आना। तो जब भी हम जो है एक डायमेंशन को नैनो स्केल पर लेकर आते हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं क्वांटम वेल। जब इसी तरीके से हम दो डायमेंशंस को जो है लेकर आते हैं क्वांटम स्केल पर, तो सिर्फ एक डायमेंशन ऐसी रहती है जो नैनो जो है क्वांटम साइज में रहती है, तो उसको हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्वांटम वायर। और जब हम तीनों ही डायमेंशंस को, यानी जीरो डायमेंशन आ जाएगी, यानी तीनों डायमेंशन को जब हम नैनो स्केल के ऊपर कन्फाइन कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम डॉट्स। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि क्वांटम कन्फाइनमेंट से भी हम जो है तीन तरीके के स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करते हैं। तीन तरीके के स्ट्रक्चर मतलब अगर एक डायमेंशन को जो है हमने कन्फाइन किया, यानी जो है नैनो स्केल पे लेके आए तो वो बना क्वांटम वेल, दो डायमेंशन को लेकर आए तो वो बना क्वांटम वायर, और तीनों डायमेंशन को लेकर आए तो वो बनी हमारी क्वांटम डॉट। तो ये तीनों एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमारी फर्दर स्टडीज में हेल्प करते हैं क्वांटम फिजिक्स की, सॉरी नैनो फिजिक्स की। तो अभी मैं आप लोग को पहले बता रही थी कि जब हमारा बल्क फॉर्म में रहता है, थ्री डायमेंशन में हमारा कोई भी मटेरियल, तो उसके एनर्जी लेवल जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, बैंड के फॉर्म में होते हैं, अलग अलग होते हैं पर बैंड फॉर्म में होते हैं और स्ट्रक्चर्ड होते हैं। लेकिन जैसे ही ये फॉर्म जो है आपका नैनो स्केल पे जाता है, एक भी डायमेंशन नैनो स्केल में जाती है, तो ये बैंड स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे जो है डिजॉल्व होकर एक सेपरेट बैंड्स में जो है सेपरेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी चेंजेस आने लगते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। और जैसे हम इनके डायमेंशन को और कन्फाइन करते जाएंगे, दे आर शार्पली चेंज देयर एनर्जी लेवल्स विद द डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज स्टेप, जिसकी वजह से हमारे इन तीनों ही स्ट्रक्चर की चेंज प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ सकते हैं। तो इस जो है पार्ट से हमने ये कंक्लूजन लगाया, या जो है हमने चेज किया कि क्वांटम कन्फाइनमेंट इट इज अ बिगेस्ट कॉज टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वांटम नैनो मटेरियल। तो यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्वांटम कन्फाइनमेंट जो है एक पहला रीजन है कि जहां पर नैनो पार्टिकल जो है अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है ड्यू टू द एनर्जी लेवल, अलाउड एनर्जी levels has been discreted. Now we are moving to the second cause by which that is showing the different scenario or different जो है changes into the properties of the nano material, that is called as a surface to volume ratio. Surface to volume ratio is a basically indicated from their name, that is the ratio of the surface area with respect to the volume. So that we बहुत अच्छे से हमें इस शब्द से ये चीज क्लियर हो रही है कि ये एक इंडिकेट कर रहा है रेशियो किस चीज का, सरफेस एरिया का विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम। तो जैसे ही हम इस रेशियो के डेफिनेशन को समझते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज प्ले अ मेजर पार्ट और टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द नैनो मटेरियल। तो एज वी सी दैट कि दिस इज अ बल्क मटेरियल, तो दैट मीन्स द ऑल द पार्टिकल आर confined in that shielded environment of the bulk material. When it is reach into the nano particle or the nano range or in that way, so that means ki there will be the volume will be the same, but there will be a surface area will be large for the nano material, and that is showing a drastical change there into the chemically properties. That means हम नॉर्मल वर्ड्स में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम बल्क मटेरियल में बात करते हैं तो बल्क मटेरियल में वॉल्यूम विल बी द सेम एंड नैनो साइज में भी वॉल्यूम विल बी द सेम, बट फॉर द पार्टिकल्स के लिए जो सरफेस एरिया है दैट इज चेंज एट द नैनो मटेरियल इज अ लार्जर वन। और इस चीज़ को हमने जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको यहाँ पे एक नॉर्मल से जो है एग्जाम्पल से। कि अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया हुआ है और इस सर्कल का मैं जो है सरफेस एरिया देखना चाहूँ तो दैट इज 4 पाई अपॉन आर, और इसका अगर हम वॉल्यूम लेंगे तो दैट इज 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सरफेस एरिया और ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ दिस जो है सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हम इसका रेशियो ले रहे हैं तो व्हाट वी गेट दैट इज वी आर गेटिंग 4 पाई बाई 3 पाई आर क्यूब, तो दैट वी आर गेटिंग द रेशियो इज 3 बाई आर एंड दैट इज शोइंग द रिलेशन ऑफ surface area
टू वॉल्यूम रेशियो। तो इस सर्कल में हमने समझा कि हमने जो है सरफेस एरिया लिया सर्कल का, कितना है 4πr², और वॉल्यूम कितना हो गया 4π/3πr³। तो इस रेशियो से हमें मिला कि 3/r। दैट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग व्हाट इज द r, दैट इज द रेडियस ऑफ दैट पार्टिकल। तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि अगर जैसे जैसे हम इस रेडियस को कम करते जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा है, इनवर्स का रिलेशन है, तो जैसे जैसे पार्टिकल का रेडियस कम होता जाएगा वैसे वैसे उसका सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा, जो है बढ़ता ही जाएगा। तो दैट इज इंडिकेटिंग कि वॉल्यूम विल बी द सेम, बट जैसे ही हम उसके सरफेस एरिया को जो है उसके रेडियस को घटाते जाएंगे तो वैसे ही उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो है वो क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। और जब सरफेस एरिया हमें उतने ही कम वॉल्यूम में ज्यादा मिलेगा तो दैट मीन्स द एटम विल बी द मोर रिएक्टिव। तो एज अ पार्ट यहाँ पर इन्होंने जो है इसको एक्सप्लेन किया है, एज अ पार्टिकल साइज डिक्रीजेस द परसेंटेज ऑफ एटम ऑन इट्स सरफेस ड्रास्टिकली कंपेयर टू द एटम इनटू द बल्क हैज बीन इंक्रीजेस। जो कि हमने यहाँ पे इस रेशियो से समझने की कोशिश की कि जब हमारा बल्क मटेरियल होता है तो वॉल्यूम तो वही रहेगा सेम एज, जब नैनो मटेरियल को हम नैनो स्केल पे लेके जाएंगे तो वॉल्यूम विल बी द सेम, लेकिन उनका आप देख सकते हो कि उनका सरफेस एरिया हर एक जो है पार्टिकल के लिए जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे हम उसको नैनो स्केल पर लेकर जा रहे हैं। और इस सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से हमारा पार्टिकल क्या हो जाता है, यानी वी आर गेटिंग मोर एंड मोर एटम इन दिस along this surface area, and that is when we are getting a large number of atom in that surface area. So that means it is showing the particle will be a more drastically chemically reactive. So this massive surface change to volume ratio make the nanoparticle is chemically reactive. As I told you, the surface area volume ratio will give a drastical change into the chemically reactive process and modifying their physical property and making them a excellent catalyst. So that means these are two very important reasons for this, the quantum the nano materials having showing their different properties on that. First is called as a quantum confinement, and second one is play a major role is that is the surface to area volume ratio. So we can understand how the property has been changed with the help of this जो है quantum confinement and the surface area volume रेशियो। तो अभी हमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नैनो स्केल पे यानी नैनो टेक्नोलॉजी में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो है पार्टिकल्स के या मटेरियल के जो है प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस होते हैं वो दो मेजर रीजन से होते हैं। पहला होता है क्वांटम कन्फाइनमेंट। क्वांटम कन्फाइनमेंट मतलब एक ही स्केल को यानी एक ही किसी भी एक डायमेंशन को आपको नैनो स्केल पर लेकर आना है। सेम एज सरफेस टू एरिया वॉल्यूम रेशियो, मतलब वॉल्यूम विल बी सेम बट सरफेस एरिया हैज बीन इंक्रीजेस एज द रेडियस हैज बीन एज द साइज हैज बीन इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो है एटम क्या होता जाएगा, केमिकली एक्टिव होता जाएगा। तो this will the two major causes by which the physical as well as their chemical properties has been changed at that nano scale. Now we have to understand how they are changes their properties. So we have to understand one by one. So first one is called the optical property. Optical properties we have to understand कि how they are looks like. मतलब optical मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो चीज़ कैसे दिखती है, क्योंकि विजिबिलिटी इज शोइंग दैट नैनो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर एक जो है नॉर्मल एग्जांपल एक्सप्लेन किया गया है कि व्हेन गोल्ड वी हैव टू टेक इन इनटू द बल्क फॉर्म दैट इज शोइंग अ येलो कलर, व्हेन वी आर कन्फाइन एट अ नैनो लेवल, यानी मैंने क्वांटम कन्फाइनमेंट किया इसका अगर इसके एक पार्टिकल का, तो इट इज चेंज देयर जो है कलर इज फ्रॉम द येलो टू द ब्राइटर red. Same as the silver is a colorless at the bulk form, but when it is reached to the nano level it is showing a pale yellow color. So optical properties of the material are one of the most direct example of size dependent behavior. तो यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं नैनो पार्टिकल की वो कहला रही है यहाँ पर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो एट द नैनो स्केल पर जो है वो इन्होंने बताया कि साइज जो है दैट इज प्ले अ मेजर रोल टू चेंज देयर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी।
तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो है किसकी वजह से जो है ये चेंजेस करते हैं। एट द नैनो स्केल द वे मटेरियल इंटरैक्ट विद द लाइट इज फंडामेंटली ऑल्टर्ड ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन। अभी ऑप्टिकली प्रॉपर्टी में चेंजेस क्यों आते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द क्वांटम पार्टिकल एब्जॉर्प्शन, यानी लाइट, और इसको जो है एक्सप्लेन किया गया था विद द हेल्प ऑफ द जीएमआई थ्योरी। जीएमआई इज द साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई जो है पार्टिकल जो है एक नैनो पार्टिकल के ऊपर पड़ता है, तो जो लाइट ट्रांसमिटेड लाइट, सपोज कर लो मेरा ये नैनो पार्टिकल है, इस पे कोई पार्टिकल जो है लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है, तो ये जो लाइट इंसिडेंट है और यहाँ से निकलने वाली जो ट्रांसमिटेड लाइट है, दैट विल बी हैव बीन चेंज, और दिस द चेंज इन द ट्रांसमिटेड लाइट इज डन विद द हेल्प ऑफ चेंजेस इज डन विद द हेल्प ऑफ स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन। उनकी जो है, यानी सिंपल वर्ड में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि जीएमआई थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जब भी लाइट किसी नैनो मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो व्हाइल इज रीचिंग इन दैट नैनो मटेरियल, तो यहाँ पर कुछ पार्ट इसका क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, और कुछ पार्ट जो है एब्जॉर्ब होता है। ड्यू टू दिस स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन, जो लाइट यहाँ से ट्रांसमिटेड होगी, दैट इंटेंसिटी हैज बीन चेंज एज रिस्पेक्ट टू द लाइट एंटर इन और इंसिडेंट इनटू द नैनो मटेरियल। तो इस एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग की वजह से जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है यहाँ से, इसमें जो है चेंजेस आ जाते हैं। तो ये चेंजेस ही उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को जो है एक्सप्लेन करते हैं, और यहाँ से निकलने वाली ही लाइट जो है हमें क्या शो करेगी, उसका परसीव्ड कलर। तो GMI explained this theory in 1900 and showing how to light is scattered and absorbed by the nanoparticle depends critically on their size, changing the transmitted light and thus their perceived color. तो as I told you कि जब भी हमने यहाँ पे बताया GMI theory explain करती है कि जब भी हमारा कोई पार्टिकल जो है पार्टिकल के ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट होगी, तो इससे निकलने वाली ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी में चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस होते हैं ड्यू टू द स्कैटरिंग एंड द एब्जॉर्प्शन, और इन चेंजेस की वजह से इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट की जो है इंटेंसिटी में चेंजेस आ जाते हैं। तो दैट मीन्स इट इज शोइंग दैट कि यहाँ पर हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में जो है इसके चेंजेस आ रहे हैं, और जिसकी वजह से वो बल्क मटेरियल में अपने डिफरेंट फॉर्म को जो है कलर को शो करती है, और जब वो नैनो स्केल पे पहुंचती है तो वो अपने डिफरेंट कलर को जो है एक्सप्लेन करती है। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल और द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द नैनो स्केल विच इज नोन एज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है समझा विद द हेल्प ऑफ नैनो GMI theory, ठीक है। Now we are moving to the next one. This is called as a electrical property. तो electrical property is what the end of the smooth current, which is the Ohm's law versus the Coulomb's state curve. अब Coulomb's state curve क्या होती है, that we have to understand. तो basically हम यहाँ पे एक समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो दैट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस VI ग्राफ, यानी वोल्टेज वर्सेस तो है करंट ग्राफ। तो वी कैन से दैट ओम्स लॉ स्टेट दैट एज द वोल्टेज हैज बीन इंक्रीज दैट द रिस्पेक्ट current has been increases. That means we are getting a straight line with the material in the size of the bulk material, because it is following the Ohm's law. Due to the Ohm's law, that we are getting a VI characteristic like that. But when we reach at the nano scale, it is showing a different kind of जो है VI graph. तो first we have to understand, पहले हम जो है इस VI ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। तो यू कैन से दैट कि यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए यू कैन सी दैट द करंट विल बी जो है आपका करंट कैसा है, हमारा जो है 0 है। एट द वैल्यू ऑफ दैट वैल्यू इज E अपॉन 2 पाई C, दैट इज द पर्टिकुलर वोल्टेज। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आके इसका जो है करंट क्या होता है, अगेन इंक्रीज होता है। अगेन यानी ये शो कर रहा है कि जब हमारी वोल्टेज E अपॉन 2 पाई C होगी, तभी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होगा, ट्रांसमिट होगा और हमें करंट देखने के लिए मिलेगी। अगेन हमारा जो है ये वैल्यू जब नहीं होगा, तो देयर विल बी नो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स वी आर गेटिंग अगेन अ जीरो करंट। व्हेन द रीच अगेन द वैल्यू ऑफ E अपॉन 2 पाई C, तो दैट मीन्स अगेन वी आर गेटिंग अ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, जिसकी वजह से हमें एक जो है करंट देखने के लिए मिलता है। तो दैट इज द कंटिन्यूअस इज ड्रॉप एंड रेज वी आर गेटिंग अ लाइक अ स्टेयर्स की तरह से एक हमें जो है
वीआई कैरेक्टरिस्टिक मिलती है जिसको हम बोलते हैं कूलम स्टेयर केयर। तो जिस रीजन में हमें करंट नहीं मिलेगी, दैट मीन्स देयर विल बी नो ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो दैट रीजन इज नोन एज कूलम blockades. So what is a Coulomb blockade? There will be a no current flow until the voltage is high enough to push a single electron. That means कि ये एक ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो नहीं होते, बिकॉज द करंट इज नॉट एट अ प्रॉपर स्टेप, जिसकी वजह से वो यहाँ से पुश अप होंगे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यानी एक ऐसा रीजन जहाँ पे हमें करंट नहीं मिलती, तो दैट रीजन इज नोन एज ब्लॉकेड रीजन। अब आते हैं कि जो है स्टेयर केयर। तो करंट इंक्रीज इन डिस्क्रीट जंप, मैंने बताया कि अलग अलग जो है जैसे जैसे हम ये जो है वैल्यूज को बढ़ाते जाते हैं, तो ये जो है एक एक इलेक्ट्रॉन को पास ऑन करता रहता है, जिसकी टनलिंग की वजह से हमें जो है करंट जो है मिलती है। लेकिन ये मिलती है कब? जब हमारा ये पर्टिकुलर वोल्टेज जो है होता है। तो करंट इंक्रीज इन डिस्क्रीट जंप, ईच स्टेप रिप्रेजेंटिंग द टनलिंग ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये जो यानी ये बता रहा है कि ये जो सिंगल जंप जो दिखा रहा है, दैट इज ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द जो है पर्टिकुलर वोल्टेज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है और हमें करंट देखने के लिए मिलता है। एंड ड्यू टू दिस वी आर गेटिंग अ स्टेयर केयर विच इज शोइंग दैट कि हमारी जो है नैनो स्केल पर जो है क्वाइट डिफरेंट होती है इसकी कंडक्टिविटी एज वेल द बल्क मटेरियल। ठीक है, तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज जो है पढ़ी, एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और दूसरी हमने पढ़ी यहाँ पर जो है जिसको हम और इसको ये जो स्टेयर केयर मिलते हैं इनको हम बोलते हैं कूलम स्टेयर केसेस। अब आते हैं हम इसकी जो है सिंथेसाइज प्रोसेस पे, यानी कैसे नैनो पार्टिकल जो है वो बनाए जाते हैं। तो पहले हमने समझा कि नैनो फिजिक्स क्या होती है, फिर हमने समझा कि उसके क्या रीजंस है जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स जो है नैनो स्केल पे आने पर डिफरेंट बिहेवियर को शो करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया उसकी जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और उसकी electrical conductivity, same as we have to define the mechanical properties also, कि यानी जब they are reaching at the जो है mechanical property as basically defined with the help of ductility, their strength and all the things। तो ये जो strength है, ductility है, ये भी नैनो स्केल पर आने के ऊपर जो है बढ़ जाती है। तो ये जो है इसकी एक अलग प्रॉपर्टीज शो करती है विच इज नोन एज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नैनो मटेरियल। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम नैनो मटेरियल को जो है बनाते हैं या सिंथेसाइज करते हैं। तो देयर विल बी द क्रिएटिंग द नैनो जो है नैनो स्केल इज द टू प्रोसेस, वन इज कॉल्ड द टॉप डाउन अप्रोच एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच को हम सिंपल वर्डों में समझेंगे कि एक बल्क मटेरियल को पहले हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन नैनो मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी इसको हम बोलते हैं अपना टॉप डाउन सिंथेसिस। तो starting with that we are taking a bulk material, then convert it into a finer pieces and then convert it to a nano particles as totally opposite, that is called the bottom up approach। bottom approach means we are taking a nano particle, फिर इनके छोटे छोटे से क्लस्टर्स को प्रिपेयर करते हैं और इससे हम एक प्रिसाइज एटम बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका हम अनदर जो है यानी दोनों ही अप्रोचेस यानी टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्रोच में हम दोनों ही डिफरेंट स्ट्रक्चर को जो है प्रिपेयर करते हैं। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आया कि जो है नैनो स्केल को यानी नैनो जो है पार्टिकल्स को हम दो तरीके से क्रिएट करते हैं। दो, पहला है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा है बॉटम अप अप्रोच। और टॉप डाउन में भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और बॉटम अप में भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन हमको स्टडी करनी है ओनली टू प्रोसेस, फॉर वन फॉर टॉप डाउन एंड वन फॉर बॉटम अप। तो अब हम नीचे पहुंचेंगे अपने बॉटम अप प्रोसेस के लिए। पहले हम पढ़ रहे हैं टॉप डाउन प्रोसेस। तो टॉप डाउन का सबसे जो है नोन जो मेथड है दैट इज कॉल्ड द बॉल माइलिंग मेथड। बॉल माइलिंग मेथड इज बेसिकली लाइक अ ग्राइंडिंग। जैसे हम घर में किसी चीज़ों को चर्न करते हैं, इट इज लाइक दैट वी आर टेकिंग वेरी ह्यूज जो है containers in which we have to put that particular bulk material। उसको हम properly एक low temperature पे क्या करते हैं जो है grind करते हैं with the help of heavy balls, और when they are crushed into the small part, तो that process is known as ball milling method। और ball milling method जो है ये हमारे top down method में आता है। तो यानी छोटे यानी bulk material को हम एक छोटे material में convert करते हैं। तो बॉल माइलिंग मेथड को ऑल्सो हम जो है मैकेनिकल एट्रेशन भी कहते हैं। ये एग्जामिनेशन में ये आपको बॉल माइलिंग मेथड
मेथड या मैकेनिकल अट्रिशन के नाम से भी आ जाएगा। तो ये क्या है, एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें लो टेम्परेचर मेथड पे और हाई एनर्जी पर हम एक बॉल को इंसर्ट करते हैं एक रोटेटिंग कंटेनर के अंदर, जिसमें बल्क मटेरियल क्या होता है, क्रश होता है और एक नैनो क्रिस्टल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और इस रिपीटेड कोलिजन की वजह से हमको जो है नैनो मटेरियल्स मिलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये एक रोटेटिंग कंटेनर होता है। इस रोटेटिंग कंटेनर के अंदर हम जो है एनर्जी कैसे रखते हैं, हाई रखते हैं, और टेम्परेचर कैसा रखते हैं, लो रखते हैं। और रोटेटिंग कंटेनर के अंदर इस बल्क मटेरियल को हम नैनो थ्रू द ग्राइंडिंग प्रोसेस कन्वर्टेड इनटू द नैनो क्रिस्टल। नाउ ये तो हुआ मेथड कि हम किस तरीके से बॉल माइलिंग मेथड से जो है प्रिपेयर करते हैं, यानी टॉप डाउन मेथड से हम प्रिपेयर करते हैं अपने नैनो मटेरियल्स। अब आते हैं इसके की फीचर्स पे। ये इनएक्सपेंसिव है क्योंकि बहुत इजी मेथड है, इजीली जो है स्केल्ड हो जाता है और बहुत अच्छे से हम एक लार्ज अमाउंट में जो है नैनो पार्टिकल्स को क्रिएट करते हैं। बट द डिसएडवांटेज इज दैट यहाँ पर जो मिलने वाले शेप्स होते हैं बहुत ही इरेगुलर होते हैं, बिकॉज हम वी आर डूइंग द हियर द ग्राइंडिंग प्रोसेस ड्यू टू दैट the low temperature. The contamination is a very bigger disadvantage for that process, and introduce a crystal defect because the size is not proper, so there will be introduce a crystal defects also. So these are some basic disadvantage of the ball milling method. अब आते हैं हम दूसरे मेथड पे जिसे हम बोलते हैं बॉटम अप जो है मेथड। तो बॉटम मेथड इज बेसिकली एक प्रिसाइज मेथड होता है, क्योंकि हम इस तरीके के मेथड में जो स्ट्रक्चर होता है वो शीट या वायर वाला स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो मेथड है उसमें हम पहले बॉटम अप मतलब जो है छोटे से उसको एक प्रिसाइज मेथड में साइज में है कन्वर्ट करना। तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, लेकिन पहली हम पढ़ेंगे और ये आपको पढ़नी है, दिस इज कॉल्ड एज अ फिजिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। तो बेसिकली बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, लेकिन हमें एक ही प्रोसेस मैंने बताया कि आपको बॉटम अप में टॉप डाउन में भी एक ही पढ़नी है और बॉटम अप में भी एक ही पढ़नी है। तो बॉटम अप में आपको फिजिकल वेपर डिपोजिशन मेथड पढ़ना है। तो फिजिकल वेपर डिपोजिशन भी मेथड कई तरीके से होता है, लेकिन प्रोसेस विल बी द सेम फॉर ऑल। ठीक है, तो प्रोसेस क्या सेम होती है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय दैट। फिजिकल वेपर डिपोजिशन यानी प्रोसेस क्या होगी कि यहाँ पर हम मटेरियल को पहले जो है कंडेंसेशन जो है स्टेप में रखते हैं, यानी 3 स्टेप प्रोसेस होती है। पहली जो है मटेरियल हमारा कंडेंस स्टेप में होता है, उसके बाद उसको इवेपोरेट करते हैं, और इवेपोरेट करने के बाद लास्ट स्टेप में अगेन हम उसको क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। तो जो भी मेथड है वहाँ पर हर एक मेथड में प्रोसेस विल बी द सेम 1, 2 एंड 3, ये 2 स्टेप प्रोसेस होती है। ठीक है, तो पहली होती है कंडेंसेशन, दूसरी होती है इवेपोरेशन, और लास्ट में अगेन होता है कंडेंसेशन। तो यहाँ पर ये जो इवेपोरेशन है, दैट इवेपोरेशन मेथड विल बी द डिफरेंट, यानी सेकंड स्टेप जो है वो हर एक भी कई तरीके की होती है। तो यहाँ पर आपको जैसे 2 दिख रही है, रेजिस्टिव मेथड और स्पटरिंग मेथड। इसके अलावा जो है लेजर भी मेथड भी होता है, यानी 3 मेथड से हम ये इवेपोरेशन प्रोसेस को जो है करवा सकते हैं। तो प्रोसेस भी यानी इवेपोरेशन का सिर्फ प्रोसेस चेंज होगा, बाकी की जो है स्टेप्स सभी में जो है कॉमन होती है। तो रजिस्टिव मेथड यानी इवेपोरेशन का मेथड हमने चेंज कर दिया, स्पटरिंग मेथड में अगेन हमने इवेपोरेशन का मेथड जो है वो चेंज कर दिया। तो पीवीडी यानी फिजिकल वेपर डिपोजिशन इज अ बॉटम अप टेक्निक वेयर मेटल इज इवेपोरेटेड इन अ वैक्यूम, और ये जो है हम किसके अंदर करते हैं, एक वैक्यूम के अंदर जो है करते हैं। ये इवेपोरेशन जो है हम वैक्यूम के अंदर करते हैं, और इस वेपर्स को जो है अगेन कंडेंस करके एक सबट्रैक्ट के ऊपर जो है इकट्ठा करते हैं, जहाँ से हम थिन फिल्म या सॉलिड फिल्म्स को जो है क्रिएट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फिजिकल वेपर डिपोजिशन एक 3 स्टेप प्रोसेस होती है, जिसमें मटेरियल को हम पहले जो है कंडेंस स्टेट में रखते हैं, दूसरा हम उसको फिर इवेपोरेट करते हैं, और वापस अगेन सबट्रैक्ट में इसको कंडेंस करके जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो ये जो इवेपोरेशन है, that is again divided into the 3 part. One is called as a resistive method, this one. Second one is called as a sputtering method, and the last one is laser beam method. तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ हम इवेपोरेशन की टेक्निक्स को जो है अलग अलग कर रहे हैं और जिसकी हेल्प से हम जो है इनको समझ रहे हैं। ठीक है,
तो अभी हम पहले समझते हैं कि मैंने बताया कि ये प्रोसेस पूरी की पूरी जो है कोई भी मेथड लेंगे वो जो है एक वैक्यूम के अंदर होगी। तो पहला हम जो है रेजिस्टिव मेथड पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा कंडेंस मटेरियल है, जो सोर्स ऑफ मटेरियल है, उसको हम थ्रू द हीटिंग कॉइल जो है पावर सप्लाई के थ्रू इसकी जो है एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करके इसको हम जो है इवेपोरेट करते हैं। एंड देन इवेपोरेटेड जो है कंडेंस फॉर्म में था, फिर इवेपोरेशन हुआ थ्रू द रेजिस्टिव मेथड, एंड देन कलेक्टेड ऑन टू दैट सब्ट्रैक्ट थ्रू सेपरेट एट द कूलिंग प्रोसेस। और फिर यहाँ से हम इसको कलेक्ट करके इसको जो है कन्वर्ट करते हैं थिन फिल्म्स और जो है उसमें सेम एज इन द स्पैटरिंग मेथड। स्पैटरिंग मेथड में अगेन ये प्रोसेस किसके अंदर होगी, वैक्यूम के अंदर होगी। इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू जो है ये हम जो अपना मटेरियल है, जो टारगेट मटेरियल है, जो कंडेंस फॉर्म में है, उसको हम क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। अगेन इवेपोरेशन के थ्रू जो है इसको अगेन हम सब्ट्रैक्ट के ऊपर कूल डाउन करके कलेक्ट करते हैं और इस तरीके से हम अपने मेटल को या सॉरी मटेरियल को जो है बॉटम अप अप्रोच में जो है कन्वर्ट करती हैं। द मेथड फॉलो अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ हाईली प्योर यूनिफॉर्म थिन फिल्म इज एक्चुअली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमको जो है ये समझ में अच्छे से आ गया होगा कि यहाँ पर जो है पार्टिकल्स को जो है बनाने के दो तरीके हैं, बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन में हमने पढ़ा बॉल माइलिंग मेथड, जो कि आपको दिख रहा होगा, जिसमें हम बड़े पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में चेंजेस करते हैं। दूसरा मेथड पढ़ा हमने बॉटम अप अप्रोच, जिसमें हम थिन फिल्म्स को क्रिएट करते हैं बाय द फिजिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। ऐसे बहुत सारे केमिकल वेपर डिपोजिशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने एक मेथड जिसको हम बोल रहे हैं फिजिकल वेपर डिपोजिशन मेथड, और जो कि 3 स्टेप में होती है, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। और इवेपोरेशन अगेन डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट। तो मैंने यहाँ पे दो आपको एक्सप्लेन किए हैं, रेजिस्टिव मेथड और स्पैटरिंग मेथड। ठीक है, बाकी द सेम प्रोसेस विल बी द सेम फॉर द एनी काइंड ऑफ फिजिकल वेपर इवेपोरेशन मेथड। ठीक है, now we are moving to that which is known as the GMR, Giant Magno Stretch Resistance Effect। ये जो है एक नैनो मटेरियल का बहुत मेजर पार्ट होता है, जिसमें हम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो है थ्रू द जो है डेटा को करते हैं, स्टोर करते हैं। तो डिस्कवरी जो थी दैट इज डन बाय द एल्बर्ट फोर्ट एंड पीटर ग्रीनबर्ग इन 1988, और जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इन 2007 में। इसकी वजह से द प्रोसेस क्या हुई, क्वांटम इम्पैक्ट क्या आया, क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना दैट लीड टू रिवॉल्यूशन इन हाई डेंसिटी डेटा स्टोरेज। GMR आर अलाउड टू heads to become incredibly sensitive to tiny magnetic field and enabling the multi-gigabyte and hard drive to power the digital ages। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में कि GMR इफेक्ट्स के हेल्प से हम लोग बहुत ज़्यादा जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं इन द प्रोसेस। तो पहले हम समझेंगे कि GMR इफेक्ट होता क्या है। नाम से समझ में आ रहा है कि ड्यू टू द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी मटेरियल के रेजिस्टेंस में चेंज आता है तो दैट इज नोन एज GMR इफेक्ट। तो व्हाट इज द GMR इफेक्ट? GMR इफेक्ट इज दैट कि एक ऐसा इफेक्ट इन विच वी हैव टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो विच इज नोन एज GMR इफेक्ट। और GMR इफेक्ट जो है हमें एक स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं GMR स्ट्रक्चर। तो GMR स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, GMR स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अपर और लोअर लेयर जो है हमारी एक जो है मैग्नेटिक मटेरियल होता है, और बीच में जो है हम एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से इसको जो है कपल करते हैं। तो व्हेनेवर देन मैग्नेटिक, और इस GMR स्ट्रक्चर को जो हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ड्यू टू दैट देयर अलाइनमेंट हैज बीन चेंज। तो अलाइनमेंट चेंज मतलब कि इनके अंदर जो पोल्स हैं दे आर अलाइन डिफरेंटली। तो अगर इनका अलाइनमेंट पैरेलल होता है तो यहाँ पर जो है ये जो GMR स्ट्रक्चर है वो लो रेजिस्टेंस को शो करती हैं, और लो रेजिस्टेंस मतलब दैट इज 1, और 0 और 1 का मतलब ही होता है, हम जब डेटा स्टोरेज की बात करते हैं तो डेटा स्टोरेज में हम डेटा देखते हैं कि 0 या 1 की बाइट के फॉर्म में जो है स्टोर होता है। तो यहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ये जो पैरेलल अलाइनमेंट है, ये पैरेलल अलाइनमेंट शो कर रहा है लो रेजिस्टेंस, जिसको हम रिजेंबल कर रहे हैं अपनी 1 से, यानी जब भी हमारा लो रेजिस्टेंस होगा तो डेटा क्या होगा, स्टोर होगा, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1। जब ये अलाइनमेंट एंटी पैरेलल होगा तो वहां पर रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से यहाँ पर हम जो रिजेंबलेंस मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, 0। तो व्हेन अ मैग्नेटिक लेयर आर पैरेलल और इलेक्ट्रॉन विद मैचिंग विद द स्पिन passes through is minimizing scattering and lowering the जो है रेजिस्टेंस को वो कम कर देगी, और जिसकी वजह से हमें जो है यहाँ पर पॉजिटिव जो है रिस्पांस देखने के मिलेगा। तो ये जो जीएमआर इफेक्ट है, ये जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, ये जो है हमारी को जो है हेल्प करती हैं डेटा को बिट के फॉर्म में जो है इनके जो है स्टोर करने के लिए। तो दैट इज प्ले अ वेरी वेरी बिगेस्ट रोल टू स्टोरिंग द डेटा। अब आते हैं हम नैनो स्केल पे कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं इन एवरी फील्ड। ये जो है एप्लीकेशन है, बेसिकली मैंने इस जो है वीडियो में एक शॉर्ट फॉर्म में आपको नैनो फिजिक्स समझाने की जो है कोशिश की है। बाकी की डिटेल्स आपको जो है नोट्स में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नोट्स में आप जाके इसको और अच्छी डिटेल से जो है समझ सकते हैं। तो नैनो स्केल टूल किट जो है, यानी बेसिकली हम यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। तो मेडिसिन में आते हैं। पहले ये जो है मेडिकल एप्लीकेशन है हमारे नैनो पार्टिकल की टारगेट ड्रग डिलीवरी। टारगेट ड्रग डिलीवरी में मतलब हमारा है कि नैनो पार्टिकल को हम इनकैप्सुलेटेड करते हैं और इसको हम गाइडेड करते हैं जो है स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू में, जिसकी वजह से हम जो है इसके साइड इफेक्ट को जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। और ये तरीके की यानी टारगेट ड्रग डिलीवरी ज़्यादातर हम जो है ऐसे जो है मेडिकल अप्रोचेस के लिए लेते हैं जहाँ पर इस साइड इफेक्ट्स जो है प्ले अ मेजर रोल लाइक अ कैंसर एंड ऑल। तो वहाँ पर हम जो है टारगेट ड्रग डिलीवरी विद द हेल्प ऑफ द नैनो पार्टिकल मिनिमाइजिंग द साइड इफेक्ट्स। तो ये इस तरीके से मेडिसिन में हमारा जो है ये हेल्प करती है। दूसरी आती है, दूसरा एप्लीकेशन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। स्पिनट्रॉनिक्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अलग अलग तरीके के जो है रैम्स जो है एसईआर जो है डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ नैनो पार्टिकल्स। स्पेस एंड डिफेंस, अगेन द स्पेस एंड डिफेंस में हम बहुत अच्छे एरोजेल्स और प्रोपेलेटर जो है विद द हेल्प ऑफ नैनो मटेरियल जो है क्रिएट करते हैं। फोटोनिक्स, फोटोनिक्स यानी क्वांटम डॉट्स और नैनो वायर की हेल्प से हम जो है अपने डिस्प्लेस ऑफ द सेंसर और कम्युनिकेशन को भी जो है चेंजेस करते हैं वेरी ड्रास्टिकली विद द हेल्प ऑफ नैनो मटेरियल। डिटेल्स यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द नोट्स हियर। एक बेसिक मैं आप लोग को यहाँ पर एक आइडिया दे रही हूँ। नाउ नैनो टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है एज ए एप्लीकेशन इन टू द बैटर कार। तो पहला लाइट वेट और स्टडी पार्ट्स बनाने के लिए जो है नैनो पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है इन द इंजीनियरिंग प्रोसेस। सेल्फ क्लीनिंग ग्लासेस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजेस होता है। टायर्स, स्मूथ नॉन स्क्रैच पेंट्स एंड कूलिंग हार्मफुल emission, इन सब के लिए यानी when we are assemble all the things with the help of the nanotechnology on the road, we are getting a better car which is with the help of nanotechnology we are getting. So different parts we have to explain with the help of this diagram. Now so in this chapter we have to understand ki how the atom to atom we have to change the future at the scale of nano technology with the help of the nanotechnology. I hope you have to understand lots of concept with the help of this video. And I told you that here ki if you like it, so just subscribe it and share it with your friends and your colleagues also. And in the description you will get the notes link where you have to reach out this all the short form into the better way or into the in a writing purpose. So I hope you have to understand. Stay blessed, stay learning, and bye bye to all of you. Thank you for watching.